So our today's topic is average and RMS value of a sinusoidal voltage or current. Okay. In our last lecture, we studied that what is average value and what is an RMS value, right? So in order to find out the average value of the sinusoidal waveform, what we do is shown in this particular lecture. See what will happen that we have a sinusoidal waveform which we are seeing right now. Okay, just this is a sinusoidal waveform. Okay, Im is the maximum value. In this particular diagram, what we have shown is current I and voltage V. In the graph drawn with respect to theta, that is equal to omega t. Okay, theta is equal to omega t. And we have drawn a graph of sinusoidal waveform with respect to this theta. So here Im is the maximum value of the current and Vm is the maximum value of the voltage. Fine. This is you can take it as a case of resistive load where Vm and Im are in phase. Right? So what is in phase and what is out of phase? Take what is leading and lagging. These are some of the concepts which we will be studying in our next classes. But right now just see over here that we have a sinusoidal waveform. Fine, of a current as well as of a voltage. So first of all, let us see, we will take current, right? So here it is a sine wave. So as I told you that the standard form to write I is equal to Im sine theta. This was the standard form which we already studied, right? So now what will happen for average value, as we know that what we need to do is we will integrate this wave form equation, right? You will integrate I or current in this particular case, I from 0 to pi. We are taking it for half cycle because this is a symmetrical waveform, right? Positive half cycle is similar to negative half cycle. So for a complete cycle, the average value is going to be 0 because the area under this, after integration, what we get when I will integrate this curve, what I will get the area under the curve, right? सपोज लेट्स से मैं इस कर्व को, ये जो आई का ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर रही हूँ. तो इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है एरिया अंडर द कर्व. इस एरिया के अंदर कर्व क्या है कि मतलब इस कर्व के अंदर का एरिया क्या है वो पूरा मुझे मिल जाएगा, ठीक है. इन द सेम वे जब मैं इस वाले ग्राफ को इंटीग्रेट करूँगी, मतलब इसकी इक्वेशन मुझे पता होगी इस ग्राफ की, उसका मैं इंटीग्रेशन करूँगी फ्रॉम पाई टू 2 पाई. देन व्हाट आई विल गेट, जो वैल्यू मेरे पास आएगी पाई से 2 पाई इंटीग्रेट करने पे, वो इसके अंदर की वैल्यू होगी, ठीक है. सो व्हाट आई हैव गॉट इज एरिया अंडर द कर्व इन बोथ द केसेस. तो जब मैं कंप्लीट साइकिल को क्या करती हूँ, इंटीग्रेट करती हूँ पूरे टाइम पीरियड के लिए फ्रॉम 0 टू 2 पाई, तो उस इंटीग्रेशन से मुझे ये एरिया पॉजिटिव में मिलेगी और ये वाली एरिया नेगेटिव में मिलेगी, है ना, क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस एंड दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एवरेज वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में. क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इस पर्टिकुलर केस में द एवरेज वैल्यू विल बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली आपको और यहाँ पे नेगेटिव मिली, इक्वल मिली, बिकॉज सिमेट्रिकल है, ठीक है. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट. सो बिकॉज ऑफ दिस द what value I will get, average value will be 0 for the whole cycle. तो जब भी ऐसे सिमेट्रिकल ग्राफ्स होते हैं तो उस केस में हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल का ही निकालते हैं. अगर अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में आप पूरे साइकिल का निकालोगे, बट इफ़ इट इज़ सिमेट्रिकल देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल until and unless it is specified. अगर ये पूछा गया कि फुल साइकिल का एवरेज बताओ, देन ऑब्वियसली यू विल राइट डाउन कि 0 है. बट इफ़ इट्स नॉट आस्क्ड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम 0 टू पाई. तो साइन के केस में इसलिए हम हाफ साइकिल का ही एवरेज निकालते हैं और हाफ साइकिल का ही हम RMS भी निकालते हैं, क्योंकि RMS में भी वो एक्चुअली सेम ही हो जाता है. तो इट विल मीन्स यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट द सेम वैल्यू RMS के केस में. You will not get 0 but the same value which you can get by half, right, by finding out the RMS of half value. तो इसीलिए हम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म में एवरेज और RMS वैल्यूज़ हाफ साइकिल की ही निकालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वही करते ही हैं, ठीक है. तो अब एवरेज का हम लोग अपना देखते हैं कि कैसे निकाला.
अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आई एम साइन थीटा, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्लियर। अब आई एवरेज जो है इसका फॉर्मूला आपने देखा था इंटीग्रेशन आई डी थीटा, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में आई इज चेंजिंग, सो इंटीग्रेशन आई डी थीटा, और थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए लेना है, तो लिमिट्स विल बी फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, राइट। सो व्हाट वी हैव रिटन आई डी थीटा ज़ीरो टू पाई, क्लियर। ये हमने इंटीग्रेट किया एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज। देन हम इसको डिवाइड करते थे इस एरिया अंडर द कर्व को, किससे करते थे, लेंथ ऑफ द बेस, ठीक है। तो यहाँ बेस कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो टू पाई, सो लेंथ विल बी पाई माइनस ज़ीरो, दैट इज़ पाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर नथिंग बट पाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है, पूरा इतना लेंगे फुल साइकिल, बट फॉर हाफ साइकिल द बेस लेंथ इज पाई इन दिस केस, सो वी हैव डिवाइडेड इट बाय पाई। इस इंटीग्रेशन को हमने 1/पाई से इंटू किया या पाई से डिवाइड किया, ठीक है, सेम थिंग। सो what we are getting 1/पाई 0 to पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा। अब आई एम तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट आप बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन से आई एम को बाहर निकाला, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स रखना है 0 से पाई, सो 1/पाई आई एम और माइनस कॉस पाई, ठीक है। अब लिमिट्स आप इस पर रखोगे, ठीक है, कॉस जो भी ये लिमिट अपर लिमिट रख के फिर माइनस कर देते हो, फिर लोअर लिमिट इसी में रखते हो, तो वही चीज़ हमने की, माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस ज़ीरो। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, बट माइनस कॉस ज़ीरो इज रिटन ओवर देयर, सो इट विल बी -1, क्लियर। कॉस पाई की वैल्यू -1 थी, उसके आगे भी माइनस लगा हुआ है एंड दिस माइनस साइन है, सो व्हाट यू विल गेट 1 + 1 दैट इज 2, है ना। माइनस ऑफ -1 इज 1, minus of -1 is again +1, ठीक है। so you are getting 2, 1/पाई आई एम into 2 means 2/पाई आई एम, and 2/पाई if you will solve, pi is what, 3.14, ठीक है, so 2/3.14, so by using calci if you solve it, what you will get, calci in the calculator, okay, when you solve it in calculator, what you will get, 0.637 im, right। सो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर एज वेल। साइनसॉइडल केस के वेव फॉर्म के केसेस में जो आई एवरेज होगा दैट विल ऑलवेज बी 0.637 IM। इज़ इट क्लियर टू यू? आई होप इट्स क्लियर, ठीक। इसी तरीके से वी एवरेज भी आपका 0.637 VM आ जाएगा। वी एवरेज के लिए आप क्या करोगे, सेम ग्राफ है इन दिस केस, सो यू विल राइट डाउन इट लाइक दिस, है ना, सेम यू विल डू V इज इक्वल टू VM sin theta, okay, this is V, so V average, what you will get, 1/pi 0 to pi V small v d theta, right, putting the value of a small v here, you will get 0 to pi VM sin theta, fine. Now what you will get, when VM is constant, as you know, VM/pi, and here you will write minus cos theta, means everything is rest is same, okay, 0 to pi, so same thing is going to happen, है ना। Here you will solve it, and finally what you will get, that V average is again equal to 0.637 VM. This is what you are going to get, ठीक है। तो इस तरह से आप वी एवरेज और आई एवरेज कुछ भी निकाल सकते हो। सो व्हाट आई हैव रिटन, दैट एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइनसॉइडल करंट, राइट, एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइनसॉइडल करंट और वोल्टेज इज 0.637 into maximum value, clear? Okay, so this is something which you need to remember. Okay, so this is the whole thing which we have studied, right? So this is all about the average value of the sinusoidal voltage and current. Now in our next lecture we will see how to find out the RMS value of the sinusoidal voltage or current. Thank you.